Welcome to the YouTube channel of EGPS Career. Click the subscribe button and share the video. Thank you for watching patiently. Stay home, stay safe. Thank you. Welcome to the YouTube channel of Evergreen Public School. I am Ejaz Ali. Today I am going to teach you mensuration class 8, chapter number 10. So first of all, we will try to know the meaning of mensuration was and what actually mensuration is. Then after completing it, we will try to solve some question of your exercise textbook. So mensuration starts. Mensuration, what is mensuration? Mensuration का जब हम लोग भी मानेंगे कि it means measurement. In time logically it means measurement of any side of perimeter of area or volume. So according to mathematics, mathematically mensuration can be defined as the branch of mathematics which deals about the measurement of perimeter, area and volume of geometrical figures. Means mensuration का अगर definition लिखेंगे the branch of mathematics, the branch of mathematics का वो branch जिसमें हम क्या पढ़ते हैं which deals about the measurement of क्या मेजर करेंगे हम पेरीमीटर मेजर करेंगे. पेरीमीटर होता है क्या बाद में एक्सप्लेन करेंगे. पेरीमीटर हम कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे. एरिया हम मेजर करेंगे और वॉल्यूम हम मेजर करेंगे किसका? ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स. ऑफ डायरेक्ट हम फिगर्स लिख सकते हैं. तो मैथमेटिक्स के उस ब्रांच को हम मेंसुरेशन के नाम से जाने जाते हैं. तो आपको जो फिगर होगा मैथमेटिकली व्हाट फिगर इज. फिगर अगर देखा जाए तो फिगर की दो टाइप्स होती है, फिगर नंबर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड. पहला फिगर यानी कि प्लेन फिगर होंगे आपके, जिसके मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दूसरा फिगर आपके पास होगा सॉलिड फिगर्स. Plane figure are those figures which has two dimensions. Therefore, these figures are also called two-dimensional figures. 2D figures के नाम से भी जाने जाते हैं. For example, we have rectangle. Rectangle is a plane figure. Our square is plane figure. Triangle we have also 2D figure. Circle we have 2D figure and many more such figures. As far as the solid figures are concerned, these figures has 3 dimensions, means they have length, breadth and height. These 2D figures has only 2 dimensions, that is length and breadth. Their height is 0. As far as the solid figure are concerned, they have 3 dimensions. Dimension means length, breadth, height. इनको हम dimensions कहते हैं. जब अगर 3 डायमेंशन होगा तो देयरफॉर ऐसे फिगर्स को हम 3 डायमेंशन और 3D फिगर्स के नाम से भी जाने जाते हैं. 3D फिगर्स के नाम से भी जाने जाते हैं. एग्जांपल के तौर पर आपका जैसे कि आपके पास होगा क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, कोन्स होगा, आपके पास स्फीयर होगा. These figures came under the category of what? Solid figure or 3D figures. So in this chapter mensuration we will only deal about rectangle, square, triangle, circle यानी कि प्लेन फिगर या 2D फिगर के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D फिगर के बारे में. पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे. इनका वॉल्यूम तो 0 होगा, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले इन फिगर्स का हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे. फॉर्मूला फ्रेम करने के बाद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले आपका फिगर्स यहाँ पे लेंगे कि हम फिगर्स का शेप यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे. वी विल डिराइव द पेरीमीटर डिराइव करेंगे, एरिया डिराइव करेंगे. एरिया का फॉर्मूला पहला आपके पास जो फिगर होगा दैट इज स्क्वायर एक टाइप का कोरिलेटरल है whose all sides are equal. चारों साइड इक्वल होते हैं.
इक्वल इन पैरेलल, ऑपोजिट साइड इक्वल इन पैरेलल और हर एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर पेरीमीटर की अगर बात की जाए, पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम कहते हैं पेरीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। अगर स्क्वायर का साइड अगर एस रखेंगे तो बाकी तीन साइड बेस होंगे, देयरफॉर इट्स पेरीमीटर विल बी साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, देयर विल बिकम 4 into side 4s. As far the area is concerned, side into side, that will be side square will be the area of square. Similarly, as far as the rectangle are concerned, rectangle उस कोऑर्डिनेटर को हम कहते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है और चारों एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल। अगर इसको हम लेंथ रखेंगे, लॉन्गेस्ट सेट को लेंथ रखते हैं, एल से डिनोट करते हैं, स्मॉलेस्ट सेट विल बी योर ब्रेड्थ। सो अगर पेरीमीटर देखा जाएंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये भी आपका लेंथ होगा, ये भी आपका ब्रेड्थ होगा। देयरफॉर इसका टोटल फॉर्मूला अगर देखेंगे पेरीमीटर का, ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ, देयर विल बी बिकम ट्वाइस इनटू एल प्लस बी। आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। As far as the rectangle's area is concerned, it will become length into breadth. The product of length and breadth will be the area of the rectangle. इसी तरह तीसरा फिगर हम लेंगे ट्राइंगल। The third figure will be triangle. ट्राइंगल 3 टाइप का ट्राइंगल हो सकता है। अगर तीनों साइड इक्वल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। अगर 2 साइड इक्वल होगा दैट विल बी योर आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों साइड अगर डिफरेंट होगा दैट विल बी सेकंड ट्राइंगल। तो इसमें हम क्या करेंगे, तीनों साइड अलग रखेंगे, S1 S2 S3 विल बी दिस साइड फॉर एग्जांपल। तो इसका पेरीमीटर होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3। अगर इसकी एरिया देखा जाए तो किसी पार्टिकुलर वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर का नाम ऑल्टीट्यूड रखा जाता है या हाइट और ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया विल बी 1/2 इंटू बेस होगा ये वाले। अगर ऑल्टीट्यूड ऐसा ड्रॉ करेगा तो S1 हम बेस के तौर पर लेंगे। अगर यहाँ से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो S2 विल बी योर बेस। अगर इस वर्टेक्स से अगर आप ऑल्टीट्यूड या हाइट ड्रॉ करेंगे तो देन S3 विल बी द base. So the formula will be 1/2 into base into altitude or base into altitude. This will be the area of triangle. तो आपका चौथा फिगर होगा पैरेललोग्राम। Parallelogram is also a type of quadrilateral whose opposite sides are equal in parallel. Only opposite sides are equal in parallel. बाकी एंगल 90 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता, ऑल एंगल्स। तो अगर ये लेंथ अगर L रखेंगे, इसको हम साइड 1, इसको हम साइड 2 रखेंगे, तो इसका टोटल पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, अगर ये साइड S1 होगा दिस विल आल्सो बिकम S1, दिस विल आल्सो बिकम S2, देन द टोटल पेरीमीटर विल बी इक्वल टू S1 प्लस S1, दैट विल बिकम ट्वाइस S1। डायरेक्ट लिख देंगे 2 into S1 प्लस S2 बिकॉज S1 plus S1 will become twice as S2 plus S2 will become twice as, दो को बाहर कॉमन निकाला, therefore the total perimeter will become 2 into S1 plus S2. As far as the area of this particular diagram और figure is concerned, तो क्या करेंगे, किसी particular vertex से altitude ड्रॉ करेंगे, height ड्रॉ करेंगे, this will be the height, perpendicular ड्रॉ करेंगे, उसी perpendicular को हम height कहा जाता है, therefore the area will become S1 यानी कि side into altitude, side into altitude। अगर यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे देन S2 विल बी द साइड, ये साइड आपको लेना पड़ेगा अगर यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। एंड लास्ट योर फिगर विल इज द सर्कल, तो सर्कल होगा आपका सर्कल। तो सर्कल का डायग्राम अगर बनाएंगे तो सर्कल कुछ इस तरह होगा आपका, यहाँ पे आपका सेंटर होगा, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो भी लेंथ होगा देयर विल बी द रेडियस, स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 into pi into r, where pi is equal to 22/7 और इसका वैल्यू हम 3.14 ले सकते हैं, जो मिलेगा आपकी मर्जी। इन द लास्ट
the area of this particular diagram figure will be become pi r square, pi where pi is equal to 22/7 or 3.14. तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ. स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4s एंड एरिया विल बी ए स्क्वायर. साइड स्क्वायर रेक्टेंगल के अगर पेरीमीटर देखा जाए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड होगा एंड द एरिया विल बिकम लेंथ इंटू ब्रेड. ट्राइंगल का s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड इट्स एरिया विल बी 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड को कभी कभार हाइट के नाम से भी जाना जाता है, हाइट भी हम लिख सकते हैं. पैरेललोग्राम द एरिया विल बी साइड इंटू ऑल्टीट्यूड एंड इट्स पेरीमीटर विल बिकम 2 इंटू s1 प्लस s2. सर्कल का अगर देखा जाए पेरीमीटर विल बी 2 पाई r एंड इट्स एरिया विल बी पाई r स्क्वायर. तो ये हो गया आपका कुछ फॉर्मूलाज, इनको आप याद रखना है, तब जाके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो हम लेट्स मूव टुवर्ड एक्सरसाइज 10.1. एक्सरसाइज 10.1 की तरफ मूव करेंगे. तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका a square and a rectangular field with measurement as given in the figure has the same perimeter. Which field has the larger area? आपके पास दो प्लेन फिगर दिया गया है. पहला प्लेन फिगर इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर की फॉर्म में पहला फिगर आपका दिया है, ये आपका स्क्वायर होगा. द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर इसका साइड दिया है, तो चारों साइड 60 सेंटीमीटर होगा. एंड इन द सेकंड केस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन. द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 80 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर. तो इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है. मीन्स द लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री एंड द लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री इज इक्वल. ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना है किसका एरिया ज्यादा होगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर डायग्राम पे इस फिगर का हम ब्रेड निकालने की कोशिश करेंगे. गिवन ये है कि इन दोनों का आपको पेरीमीटर इक्वल दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन पहला आपका गिवन आपके पास है. साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर. तो इसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं. पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 इंटू साइड. 4 into side, that will become 4 into side is given as 60 centimeter. Therefore, the perimeter of this square will be 6 into 4, 240 centimeter. Also, length of rectangle. Length of rectangle is 80 centimeter आपको दिया है. 80 centimeter. So हमें ब्रेड पता नहीं है. लेट द ब्रेड बी आर ई ए डी टी एच. ब्रेड बी हम एक्स रखेंगे, तो क्या होगा, इट्स पेरीमीटर विल बिकम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज हाउ मच, इट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड. लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर प्लस एक्स इज योर ब्रेड. तो दिस perimeter will be equal to this perimeter because it is given in the question that perimeter of square is equal to the perimeter of the rectangle. Therefore इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे 240 सेंटीमीटर is equal to 2 into 80 सेंटीमीटर plus 2 into x. That will become 2 into x is equal to 240 सेंटीमीटर minus 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर होगा. There will become x is equal to 240 minus 160 will be 240 minus 160 will be 80 centimeter whole divided by 2. तो यहाँ पे अगर ट्रांसपोज करेंगे it will divide 80 centimeter. Therefore the value of this unknown x will become 40 centimeter. तो x का वैल्यू 40 सेंटीमीटर आया. इसका मतलब इस पार्टिकुलर वैल्यू उस रेक्टेंगल का पार्टिकुलर वैल्यू क्या होगा आपका 40 सेंटीमीटर होगा. सो अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे, सेकंड केस में हम दोनों का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो एरिया ऑफ, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. देयर विल बिकम साइड 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर.
तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 into 60 will become 3600 centimeter will be the area of the given square. Also the area of rectangle will become how much? Area of rectangle will be equal to length into breadth. Length is equal to 80 centimeter we are given. We have also calculated the breadth which is equal to 40 centimeter. So the value of the area of this particular figure will be 8 into 4, 3200 centimeter into centimeter will be centimeter square. So area of square will be 3600 centimeter square and area of rectangle will become 3200 centimeter square. So we know that 3600 centimeter square is greater than 3200 centimeter square. Therefore the area of the given square is greater than the area of the rectangle. Area of square is greater than the area of rectangle. rectangle की एरिया से स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा. सो पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया. लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है, रब करते हैं. Question number 2 speaks. Mrs. Kamran has a square plot with a measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of. Mrs. Kamran के पास एक स्क्वायर प्लॉट है, एक जमीन का टुकड़ा है, which is in the form of a square. स्क्वायर की फॉर्म में एक प्लॉट है whose length is given as, जिसका लेंथ आपको 25 मीटर दिया है. लेंथ इज गिवन एज 25 मीटर. जब स्क्वायर होगा चारों साइड 25 मीटर होगा. तो इसके बीच में आपको मिसेस कामरान को एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, एक रेक्टेंगुलर शेप का एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका आपको लेंथ रखना है 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ रखना है आपको. The breadth is given as 15 centimeter. This will become 15 centimeter. तो जो बाकी लेन बचेगा उसमें आप मिसेस कामरान को एक गार्डन कंस्ट्रक्ट करना है. तो गार्डन कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको कितना पैसा लगेगा? अगर 55 मीटर ₹55 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर वो देगा तो टोटल आपको कॉस्ट निकालना. तो पहले क्या करेंगे, टोटल का एरिया निकालेंगे, ये माइनस करेंगे, आपको गार्डन का एरिया निकल जाएगा, 55 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2. एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ प्लॉट विल बी साइड इनटू साइड, दैट विल बिकम 25 मीटर into 25 मीटर, that will become 25 into 25, 625 मीटर स्क्वायर. दूसरा एरिया ऑफ द हाउस, जो उसने हाउस कंस्ट्रक्ट की तो उसका एरिया क्या होगा? द हाउस इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर द एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, द लेंथ इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर माइनस into, and the breadth is given as 15 centimeters. So the total value will become 5 into 2, 15 into 2, 30, 300 meters square will be the area of the total area of the house. So area of the garden का एरिया कितना होगा? इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर माइनस 300 मीटर स्क्वायर. टोटल एरिया से इस गार्डन, इस हाउस का जब एरिया माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको गार्डन का टोटल एरिया निकल के आएगा. देयरफॉर 625 माइनस 300 विल बिकम 5 से 0 का तो 5 होगा, 2 से 0 का तो विल बिकम 2. 325 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द गार्डन. So cost of
cost of constructing the garden गार्डन उसको कंस्ट्रक्ट करना है, रेट दिया है एट द रेट ऑफ 55 रुपीज, एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर को उसको देना है पैसा 325, तो टोटल कॉस्ट विल बिकम ₹325 into 55। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको आंसर खुद निकालना है। देयर विल बी योर होमवर्क। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका।